Let's start the interpretation of chapter number 8, part 2, Maria Sharapova. As I have covered many things there in the introductory part, I'll directly go into the interpretational part now. Before you read, a Russian girl, Maria Sharapova, Russian girl means she was a girl from Russia, Maria Sharapova, reached the summit, reached the top. Or you can say Hindi mein shikhar tak, sheersh tak. There are certain word meanings, especially the synonyms, which are also being given when you will just go into the pinnacle, zenith, vertex. All these are the synonym for this. Reached the summit of woman's tennis when she was barely 18. When she was merely 18 years old, she became the number one in the world. As you read about her, see if you can draw a comparison between her and Santosh Yadav. When you go through this, try to find out the commonalities between the two. Means what were the common points between these two. Now let me come on to the interpretational part, paragraph number 1. There is something disarming about Maria Sharapova. Disarming has 2-3 meanings, but the apt meaning over here is making someone begin to like you, means pleasing. There is something disarming about Maria Sharapova. There is something which pleases you a lot about Maria Sharapova. Something attracts with her ready smile. कुछ ऐसा अजीब सा जो उसकी सीधी टाइप की स्माइल से and glamorous attire, जो उसकी तड़क भड़क वाली, glamorous means which attracts you, highly glamorous in nature means तड़क भड़क, attractive. Attire word meaning I have given at the last, especially of a particular type clothes. Attire. उसके खास करके तड़क भड़क वाले कपड़े और उसकी जो सीधी टाइप की जो है एक खास टाइप की स्माइल, उससे आपको खास करके कुछ ऐसा महसूस नहीं होगा. And the something in her lifted her, और जब उसने पहली बार उठाया Monday 22nd August 2005 to the world number 1 position in the world's tennis, women's tennis. और 22 अगस्त सोमवार के दिन 2005 को जब उसने जो है दुनिया के नंबर 1 का खिताब ग्रहण किया, यूं कहिए कि लेडीज़ या वुमेन्स टेनिस के अंदर. इन दोनों में कोई ज़्यादा सी आपको समानता दिखाई नहीं देगी. उसकी जो स्माइल और तड़क भड़क वाले कपड़े या जो उसने जो है दुनिया की पहले नंबर की खिलाड़ी बनी, वो उसमें आपको कोई खासा सा तालमेल नज़र नहीं आएगा. ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम. ये बस देखते ही देखते हो गया. दिस इज अ गुड सेंटेंस. ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम. इसको होने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा. Poised होता है टिकी हुई. Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Professional वैसे पेशेवर होता है प्रोफेशनल का मतलब, और प्रोफेशनल के 2 या 3 मीनिंग हैं. एक है पेशेवर, द पर्सन हु डज हिज वर्क ऑन पेमेंट और इन टर्न ऑफ मनी, और सेकंड है a particular type of work that requires special training and you can say education. एक खास तरह का काम जिसमें एक स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग या शिक्षा संबंधित शिक्षा का जो है समावेश होता है. Poised beyond her years, अपनी आयु से अधिक ऊंचाई पर टिकी हुई. Means whatever she has gained was not in comparison with her age. Means उसने अपनी आयु से ज़्यादा ग्रहण कर लिया था. The Siberian teenager took just 4 years. और साइबेरिया की रहने वाली इस छोटी सी उम्र की लड़की ने, यूं कहिए कि किशोरी ने
साइबेरिया की रहने वाली इस छोटी सी लड़की ने took just 4 years, केवल 4 साल लिए as a professional, एक पेशेवर के रूप में, to reach the pinnacle, उस शीर्ष तक पहुंचने में. Now you can see this, the second word has come. First one was a summit in the very first line. Now the pinnacle has come. These two are synonym of each other. On the top of, शीर्ष तक, दुनिया के शीर्ष तक पहुंचने में इसने केवल 4 साल लिए साइबेरिया की इस किशोरी ने. Now I have certain word meanings for you. These are very quite good words and I hope you must go through them. Don't think that they are being written for your teacher. They are being just given for your reference. Please go through them. Now I am changing page number 105. This chapter has a very good English, mind it. She is your Maria Sharapova, highly glamorous, and she used to be the top model in the world. Maria Sharapova won the women's singles at Wimbledon in 2004. She was quite glamorous and she was equally famous for her, you can say, fashion shows and as a model. Or she also got a very high position in the modeling field, especially the ramping and all that one. So she was equally of great repute in the sports as well as in the glamorous field, especially in fashion. Number 2. However, the rapid means very fast. Ascent means climbing. ऊपर की तरफ जो हम चढ़ते हैं उसको ascent बोलते हैं. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world, एक fiercely, very hard, neck to neck. See, English is, this is a quite good English. You need to learn that. However, हालांकि, the rapid accent in a fiercely competitive world, उसका जो accent था, उसका जो एक तरह से तेजी से जो चढ़ाव था, इस बहुत प्रतिस्पर्धात्मक संसार में, fiercely competitive world, competitive, प्रतिस्पर्धात्मक, fiercely बहुत तेज, तो जो ये उसका चढ़ाव था, begin 9 years before with the level of sacrifice a few children would be prepared to endure. 9 साल की उम्र से पहले ही शुरू हो गया था with the level of sacrifice, एक उस स्तर के बलिदान के साथ, a level of sacrifice, उस स्तर के बलिदान के साथ केवल कुछ बच्चे ही उसको सहन करने के सक्षम होते हैं. prepared to endure होता है सहन करना किसी चीज़ को, कम बच्चे ही सहन करने को तैयार होंगे. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday. उसने अभी तक अपना 10th birthday celebrate नहीं किया था when she was packed off to a train in the United States. जब उसको जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए विदा कर दिया गया एक ट्रेन के द्वारा, एक ट्रेन में उसको बिठा करके एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए विदा कर दिया गया. That trip to Florida with her father Yuri, उसकी वो ट्रिप, उसकी वो यात्रा फ्लोरिडा के लिए, फ्लोरिडा एक शहर है अमेरिका का, फ्लोरिडा विद अ फादर यूरी जो उसके पिता का नाम है, यूरी के साथ, लॉन्च हर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस, उसने उसको प्रसिद्धि के रास्ते पर चला दिया या सफलता के रास्ते पर चला दिया. लॉन्च्ड हर, शुरू कर दिया, ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस, सफलता के रास्ते पर, एंड स्टारडम और प्रसिद्धि, नेम एंड फेम, रेप्यूट. Stardom is repute. I have written the word meaning also at the bottom portion. The quality of being famous. आपका प्रसिद्ध होना, that is called stardom. शोहरत की दुनिया के शिखर पर, success and stardom, और शोहरत के रास्ते की तरफ उसको शुरू कर दिया. But it was also required a heart-wrenching 2 years separations. परंतु इसके लिए आवश्यकता थी 2 years, 2 साल की हर्ट रेंचिंग, दिल तोड़ देने वाली, हर्ट रेंचिंग, दिल को मरोड़ देने वाली या कुचल देने वाली, तोड़ देने वाली, सेपरेशन फ्रॉम अ मदर येलेना, अपनी माँ से जुदाई जिसका नाम येलेना था. मीन्स ये शोहरत और ये जो स्टारडम था ये वैसे ही नहीं आया, इसके लिए 2 साल की दिल को तोड़ देने वाला जो है एक जुदाई शामिल थी उसकी माँ से जिसका नाम येलेना था. द लेटर, लेटर नहीं है ये, दिस इज लेटर, pronunciation is letter.
लेटर होता है जो ये जैसे येलेना का मेंशन हुआ है अभी यहाँ, ये मेलेना येलेना इसमें लेटर पार्ट है, लेटर पार्ट LETTER। दो आदमियों का जहाँ वर्णन होता है तो जो आखिरी वाला होता है उसको लेटर बोलते हैं। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया। तो ये जो माँ का नाम आया है येलेना, इसको बाध्य कर दिया गया, कंपेल्ड टू स्टे बैक, वो बाध्य हो गई वहीं पे रहने के लिए साइबेरिया में, बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस के कारण, वीज़ा प्रतिबंध। जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो आपका वीज़ा लगता है। वीज़ा एक ऑफिशियल परमिशन होती है वहाँ पे जाने के लिए या स्टे करने के लिए। सो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस मीन्स प्रतिबंधों के कारण उसकी माँ को जो है वहीं रहना पड़ा। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ। 9 साल की ये लड़की अपनी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण पाठ सीख चुकी थी अभी तक, दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड कम ओनली एट ए प्राइस, कि टेनिस के अंदर ये जो एक्सेलेंस है, एक तरह से यूं कहिए कि श्रेष्ठता है, कि यह टेनिस में जो श्रेष्ठता है एक कीमत चुकता करने पर ही प्राप्त हो सकेगी, ये मुफ्त में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट वन, I used to be so lonely. Maria Sharapova recalls. Recalls means think about, recollects. बोलती है कि मैं जो है बहुत अकेली महसूस करती थी। I miss my mother terribly. मैं बहुत ज़्यादा अपनी माँ को, terribly of a very high degree, वो बहुत ज़्यादा याद करती थी। My father was working as much as he could to keep my tennis training going. मेरे पिताजी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे थे, was working as much as he could, ज़्यादा से ज़्यादा, टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, मेरी टेनिस की ट्रेनिंग का जो खर्चा होता था उसको चलाने के लिए, चुकाने के लिए। सो ही couldn't see me either, तो इसलिए वो भी मेरे से नहीं मिल पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज्ड टू गो टू बेड एट 8 PM। बिकॉज आई वॉज सो यंग, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, मैं 8 बजे जो है बिस्तर पर चली जाती थी सोने के लिए। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन, फिर दूसरे जो टेनिस के जो छात्र होते थे या प्रशिक्षु होते थे वो आते थे, और शिष्य वो जो है रात को आते थे। नाउ दीज आर अनदर 3 वर्ड मीनिंग्स व्हिच आई हैव जस्ट गिवन ओवर हियर, एसेंट, स्टारडम एंड लेटर। द फर्स्ट वन इज क्लाइंबिंग, द सेकंड इज क्वालिटी ऑफ बीइंग फेमस, फेमस होना, एंड द थर्ड वन इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ समथिंग। जैसे मैंने बताया, दो चीज़ों का जब कंपैरिजन होता है तो जो आखिरी होती है वी कॉल इट लेटर, LETTER. This is not letter, LETTER. This is letter. Now I'm changing page. Page number is okay, this is your page number 106, and 11 PM means other students used to come at 11 PM and wake me up from, and then they used to wake me up, वो मुझे उठा देते थे, and order me to tidy up the room and clean it, और बोलते थे कि आदेश देते थे, they used to order me to tidy up, कि ठीक करो, संवारो इस कमरे को और जो है इसकी सफाई करो। ये रैगिंग होती है। आप सोचते हैं कि कॉलेज वगैरह में या वहाँ पे ऐसी ही लाइफ होती है, नहीं, वहाँ पे बहुत सफ़र करना पड़ता है। जो सीनियर्स होते हैं वो हमारी रैगिंग करते हैं, ओके। तो इसलिए जो वो सीनियर्स आते थे वो इसको काफ़ी परेशान करते थे। Instead of letting that depress me, I became more quietly determined. Instead of letting that, let वैसे होता है किसी काम का होना या अनुमति देना। Instead of letting that depress me, उससे उदास होने की बजाय, I became more quietly determined, मैं और ज़्यादा शांत रूप से कृत संकल्प या दृढ़ निश्चय, खामोशी से, क्वाइटली खामोशी से, डिटर्मिंड दृढ़ निश्चय हो गई, एंड मेंटली टफ, और मानसिक रूप से जो है काफ़ी सशक्त हो गई, मजबूत हो गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, अब मैंने सीख लिया था कि किस तरह से मेरे को अपनी देखभाल करनी है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, मैंने कभी भी वहाँ से छोड़ के जाने की नहीं सोची।
एस्केप करने की नहीं सोची, बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए. व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग, ब्यूटीफुल लाइन्स, व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग, जब आप एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ धूल हो, मीन्स एक तरह से आप मिट्टी से उठ के आते हैं, एंड हैव नथिंग, और आपके पास कुछ भी नहीं है, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटर्मिन्ड, तब ये आपको और ज़्यादा जो है भूख से ग्रसित और दृढ़ संकल्प बना देता है. कहने का मतलब ये है, जब आप ऐसी बैकग्राउंड से आए हों जो कि बिल्कुल ज़ीरो हो और आपके पास खोने के लिए कुछ ना हो, तो आपकी वो भूख को बढ़ा देगा और ज़्यादा आपको जो है आपके इरादों को जो है और मजबूत कर देगा. तो उसमें जीने का कुछ और ही मज़ा है. I would have put up with much more humiliation and insults. मैं इससे भी और कहीं ज़्यादा अपमान और अनादर को स्वीकार कर लेती, ताकि मैं अपने स्वप्न को दृढ़तापूर्वक, let me just cover up. I would have put up with much more humiliation and insults. मैं और ज़्यादा, humiliation होता है अपमान, insult अनादर, मैं इनको दोनों को स्वीकार कर लेती, than to steadfastly pursue my dream, क्योंकि मुझे बहुत दृढ़ता से, steadfastly, दृढ़ता से मेरे को अपने ड्रीम की पूर्ति करनी थी, या अपने ड्रीम को अचीव करना था. pursue means achieve or to acquire. So, okay, let me continue. The toughness runs to Maria even today. वो उस टाइप की जो टफनेस है, दृढ़ता, आज भी जो है मारिया में जारी है. It was a key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004. और ये उसके लिए सबसे बड़ी बात थी. It was key. ये उसके लिए एक बहुत बड़ी रहस्य की बात थी, या यूं कहिए that was a main point of her. उसका मेन पॉइंट था कि उसने जो है 2004 के अंदर विंबलडन का महिलाओं का एकल खिताब जीता, क्राउन खिताब. And to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. Or meteoric means word meaning is also being given. Meteoric means developing very fast and attract a lot of attention. बहुत तीव्रता से किसी चीज़ का होना और उससे जो है आपकी शोहरत बढ़ जाना. meteoric बहुत तेज. और अति शीघ्र जिसको कह सकते हैं आप. And to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. और अगले ही साल उसको दुनिया के 1 नंबर का खिताब प्राप्त हुआ, या 1 नंबर की महिला खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त हुआ. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched her hearts of millions fans. While her journey, जबकि उसकी यात्रा from the frozen plains of Siberia, frozen plains, जमी हुई उस जमीन कहिए आप, साइबेरिया के मैदान कह सकते हो. फ्रीजन प्लेन्स, प्लेन्स होता है मैदान, साइबेरिया के जमे हुए मैदान, बर्फ से ढके हुए मैदान. टू द समिट ऑफ द वुमेन्स टेनिस, उस शिखर तक, दुनिया के शिखर तक की टेनिस में शिखर तक पहुंचने तक, हैज़ टच द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस, उसने दुनिया के टेनिस के जो फैंस होते हैं, चाहने वाले होते हैं, टेनिस प्रेमियों के दिलों को छूने वाला रहा था. For the youngster herself there appears to be no room for sentiments. परंतु इस किशोरी के लिए ऐसा लगता है, appears no room for sentiments, भावनाओं की कोई जगह नहीं थी, या भावुक होने की कोई जगह नहीं थी. The straight looks and the answers he gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. उसका जो है, उसकी सीधी नज़रें और जो उत्तर वह अपनी आकांक्षा के संबंध में पूछे जाने पर देती थी. The straight looks and the answers he gives when asked about her ambition, it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. वो उसका मतलब बहुत साफ होता था. amply clear, amply means you can say, I have written the word meaning also, in a way that is more than enough, पर्याप्त.
वो बिल्कुल पर्याप्त साफ होता था कि उसके जो सेक्रीफाइसेस हैं वो इसके काबिल थे। मीन्स उसने उस लेवल के सेक्रीफाइसेस किए जिससे कि वो नंबर 1 महिला बन सकी। अगेन, आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक हूँ। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, मैं जो भी करती हूँ उसमें बहुत मेहनत करती हूँ। इट्स माई जॉब, और यही मेरा काम है, यही मेरा पेशा है। दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, ये उसकी सफलता का मंत्र है। अगेन आई एम रीडिंग इट, द वेरी फैंटास्टिक लाइन्स ऑफ दिस चैप्टर। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत ज़्यादा स्पर्धापूर्ण हूँ। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, मैं जो भी काम करती हूँ उसमें खूब मेहनत करती हूँ। इट्स माई जॉब, मेरा यही काम है। दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस। मंत्रा मीन्स मंत्र, यही मेरी सफलता का या यही उसकी सफलता का रहस्य है या मंत्र है। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद ए प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, हालांकि मारिया शारापोवा स्पीक्स बोलती है विद ए प्रोनाउंस्ड, वेरी रिफाइंड, सुस्पष्ट, वेरी क्लियर अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, बहुत अच्छे अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के साथ वो बात करती है। सी प्राउडली पैरेड्स हर रशियन नेशनैलिटी, परंतु वो जो है अपनी रूसी राष्ट्रीयता का बहुत गर्व से पेश करती है। प्राउडली, गर्व से, पैरेड्स, प्रदर्शित करती है, परेड, प्रदर्शित करना, हर रशियन नेशनैलिटी, अपनी रूसी राष्ट्रीयता को। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सभी संदेहों को दूर करते हुए, सी सेज, वो कहती है, आई एम रशियन, मैं रूसी हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये सच है कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, परंतु मेरे पास रूस की नागरिकता है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा खून पूर्ण रूप से रूस का बना हुआ है, या मेरे खून के अंदर रूसी खून बहता है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वांट मी, मैं रूस के लिए ओलंपिक्स खेलूंगी अगर वो ऐसा मेरे लोग चाहते हैं या मेरी अथॉरिटीज़ ऐसा चाहती हैं। नंबर 9, like any number of teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. किसी भी दूसरी जो है किशोरावस्था में शोहरत पाने वाली सेंसेशन, सनसनी बन चुके, किशोरावस्था में सनसनी बन चुके किन्हीं व्यक्तियों की भांति मारिया शारापोवा फैशन, गाना और नृत्य को अपना शौक बताती है। टीनेज सेंसेशन, जिसको छोटी एज में, टीनेज में जो है शोहरत प्राप्त हो जाए। मारिया शारापोवा बताती है फैशन को, गाने को, सिंगिंग को, डांसिंग को अपने शौक के तौर पे या हॉबीज़ के तौर पे। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, उसको आर्थर कॉनन डॉयल की जो है नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग्स गाउन्स, और फॉन्डनेस उसका जो लगाव है, लाइकनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड वैसे होता है बहुत ही उत्तम प्रकार का, ऑफ ए एडवांस्ड। आई हैव रिटन द वर्ड मीनिंग ऑल्सो, एडवांस एंड कॉम्प्लिकेटेड। इनफैक्ट यहाँ पे जो है कहेंगे उसको जो है बहुत सुंदर और महंगे। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, शाम के टाइम पर पहने जाने वाले उसके सुंदर और महंगे सायंकालीन गाउन होता है वो ऊपर से नीचे तक एक ही होता है। सोफिस्टिकेटेड, ऑफ वेरी एडवांस्ड क्वालिटी, ऑफ वेरी यू कैन से एक्सपेंसिव। इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड्स, ऐसा लगता है वो बेमेल से लगते हैं। विद हर लव्ड ऑफ पैनकेक्स, उसका पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड। पैनकेक्स मीन्स कहिए कि आपके केक जो होते हैं जिस पे चॉकलेट की एक लेयर लगी हुई हो। विद अ लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड, वो केक टाइप के जिस पे चॉकलेट लगी हुई हो। एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, फिजी झागदार, जिसमें थोड़े थोड़े बुलबुले, एरिएटेड यूँ कह सकते हो आप, वो कोको कोला वगैरह में उठते हैं ना थोड़े थोड़े झाग, बुलबुले। फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, और बुलबुले वाले जो है ऑरेंज ड्रिंक्स से उसका कोई मेल नहीं खाता जब वो इन चीज़ों को खाती हुई दिखाई देती है।
Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. मारिया शरापोवा को एक वर्ग में नहीं रखा जा सकता. पिजन होल्ड, एक सोच का मतलब तोते की तरह से सोच वाला आदमी, उसको एक जगह पर नहीं रखा जा सकता और कैटेगराइज वर्गीकृत नहीं किया जा सकता. हर टैलेंट, उसके जो गुण हैं, यूं कहिए कि उसकी जो योग्यता है. टैलेंट होता है नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, स्किल कह सकते हो आप. हर टैलेंट अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड, और अनवेवरिंग ना हिलने वाली मीन्स बहुत मजबूत. डिटर्मिन्ड, स्टेडफास्ट. डिजायर टू सक्सीड, यूं कहिए कि अटल इच्छा. एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और त्याग करने की जो तत्परता है. तीन चीजें बोली गई हैं, ध्यान रखना यहां पर. टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस have lifted her to the top of the world. उन तीनों चीजों ने उसको दुनिया के शिखर तक पहुंचा दिया. Lifted her, पहुंचा दिया. Few would grudge, किन्हीं को भी. Few, a few, the few, इन तीनों के डिफरेंट मीनिंग होते. Few का मतलब होता है कोई भी नहीं. तो ये थोड़ा थोड़ा ये यूज ऑफ एडजेक्टिव में आप पढ़ सकते हैं इसको. And readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. Few would grudge her. The page changing. किसी को भी जो है इस चीज की ईर्ष्या नहीं होगी. Grudge means, I have written the word meaning. You can see all these word meanings over here. Fizzy, sophisticated, meteoric, amply, and grudge. Strong feelings of anger and dislike. You feel treated. Who you feel has treated you badly. किसी के प्रति ईर्ष्या करना. Nobody will feel bad. Okay, few would grudge her the riches she is now reaping. The riches, the richness, or the luxurious things she is having is now reaping. किसी को भी कोई इस चीज से ईर्ष्या नहीं है कि, या यूं कहिए उस दौलत के लिए कोई भी उससे ईर्ष्या नहीं करेगा जो अब वह प्राप्त कर रही है. Nobody will just feel anything of her riches which she is now having. This is what she has to say about her monetary gains from tennis. This is what she has to say. उसको सिर्फ इतना कहना है जो कि उसको आर्थिक लाभ, monetary means of money, related to money, gains from tennis, जो कि उसने टेनिस से जो है हुए हैं. Of course money is a motivation. हालांकि पैसा एक बहुत बड़ी प्रेरणा होता है. निसंदेह पैसा एक प्रेरणा होता है. टेनिस इज अ बिजनेस एंड ए स्पोर्ट. टेनिस एक व्यवसाय है और एक खेल भी है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड. परंतु सबसे महत्वपूर्ण है संसार में नंबर 1 बनना. दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग. और ये वो सपना है जो मुझे हमेशा चलाता रहता है, या यही वो स्वप्न है जिसने मुझ में गति प्रदान कर रखी है. Okay, with this I finished this. Then we have certain other things also about this chapter. This was all about this chapter, the Maria Sharapova. In fact, we were also having certain other things also to discuss, which I have not just been discussed, and especially from this chapter. इन चीज़ों को ध्यान से देखें. एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर में क्या कहा गया है. 18 साल की उम्र में ये दुनिया की 1 नंबर की खिलाड़ी बनी, और उससे पहले साल इसने जो है 2004 के अंदर जो फोटो आपने देखा है, मारिया शारापोवा ने महिला एकल विंबलडन का खिताब जीता. ये ग्रैंड स्लैम होती है, और बाकी सारा भी जो है उसकी आदतें वगैरह ऐसी थी. ये दुनिया की टॉप मोस्ट मॉडल हुई है. आज भी ये है, आज भी मॉडलिंग करती है, और इसके बहुत सारे जो है स्पोर्ट्स प्रोग्राम में ये शामिल होती है. ये रशिया की थी. और इस चैप्टर की कुछ मुख्य बातें एक बार फिर मैं आपके सामने बताता हूँ. पॉइंट नंबर 1, इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है. Nothing in this world ever comes in free, you have to pay a price for that. Number 2 point,
Instead of depressing, you must be more quietly determined, mentally tough, take care of yourself, never quit. You should know what you want, your goal, especially. परेशान या एक तरह से उदास होने की बजाय आप किसी भी चीज़ के प्रति धैर्यवान तरीके से या शांत तरीके से और ज़्यादा दृढ़पूर्ण तरीके से काम करें, मानसिक तौर पे बहुत टफ रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कभी छोड़ने की बात ना छोड़ें। सोचें, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, मीन्स आपका गोल आपको क्लियर होना चाहिए। Number 3, when you come from nothing and you have nothing, then it makes you very angry and determined. Put up with much humiliation and insults to steadfastly pursue your dream. जब आपको ये पता है कि आप किसी ऐसी पृष्ठभूमि से आए हैं जो शून्य है और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा भूख लग जाएगी और आप दृढ़ संकल्प बन जाएंगे। आप किसी भी तरह के अपमान को सहने के लिए तैयार रहें अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो। Number 4, you have to be very, very competitive. There is no room for sentiments. You must work hard what you do. This is mantra for success. आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धात्मक होना पड़ेगा और इस दुनिया में भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती है। आप उसमें मेहनत करें जो भी काम करते हैं, और यही जो है किसी सफलता का मूल मंत्र होता है, जो कि इस चैप्टर में मारिया शारापोवा ने कहा। Don't be pigeonholed or categorized. Explore yourself and be creative. किसी एक चीज़ तक सीमित मत रहिए, अपने को जो है बहुआयामी बनाइए, अपने को एक्सप्लोर करिए, अपने को अंदर से ढूंढिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। You must have talent. आपके अंदर बहुत ज़्यादा कौशल हो सकता है, निपुणता हो सकती है। Unwavering desire. आपके अंदर टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड और रेडीनेस टू सैक्रिफाइस होना चाहिए। ये 3 चीज़ें जो है इस चैप्टर में जो बताई गई हैं। योग्यता, अटल इच्छा और बलिदान के लिए तत्परता। There are 3 things in this chapter you must have, and that will take you to the top of the world. Number 6, in this fiercely competitive world, only few children begin with a level of sacrifice and prepare to endure like Maria Sharapova. आजकल की इस दुनिया के अंदर, बहुत प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया के अंदर, बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो एक लेवल का सेक्रीफाइस कर सकते हैं और किन्हीं चीज़ों को सहन कर सकते हैं, मारिया शारापोवा की तरह से। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। आई होप दिस चैप्टर माइट बी क्लियर टू यू। जस्ट गो थ्रू द वर्ड मीनिंग्स अगेन। आई एम सेइंग यू there are 14 good word meanings, and this is a very good chapter from English point of view. Hope you will go through and enjoy this. Bye then, take care of yourself.